राज्यसभा में सरकार ने बेरोजगारी पर बड़ा बयान दिया है। सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 7 सालों में कितनी नौकरियां दी गई। वहीं लोकसभा में कोरोना पर गंभीर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, ये सारी बातें करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है संसद में आज। इसमें हम आपको बताएंगे कि आज संसद में क्या क्या हुआ, क्या क्या चर्चाएं हुई, कौन से बिल पास हुए और क्या बातें हुई। रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और इस वजह से सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित कर दी। 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। उसके बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। लेकिन फिलहाल हम लोकसभा की तरफ चलते हैं। Honorable members, there were suspensions in the past. Some of them were revoked prematurely because the errant members regretted their acts of misconduct in the House. I am deeply pained to know that from media reports of categorical refusal to express any regret for the act of misconduct during the last session led to this round of suspension. Then what is the way forward? You don't want to regret your misconduct, but insist on revoking the decision of this August House taken as per the new procedure laid under the rules of the House. Does this amount to upholding the principles of democracy? Leader of the House has stated in his House that revocation of suspension could be considered if the concerned express regret for what was done in the House during the last session. Deputy Chairman has urged both the sides to talk it out and do the needful to move forward to enable normal functioning of the House. As it is human error, it is human to err and also human to make amendments. One cannot refuse to amend the insist on glossing over the wrongdoings. Suspensions either in the past or now are only the expression of disapproval of the acts of misconduct of some members of the House. So disapproval of undemocratic conduct in the House cannot be described as undemocratic for sure. I urge both sides of this August House. I urge both sides of this August House, please talk it out and then find a way to do the mandated job of this House. This is my appeal to the entire House. Now we go to the zero hour. Shri Ajay Pratap Singh. Ajay Pratap Singh, zero over. Right. It is true that something unfortunate happened in South. Right. We don't know that. Right. I have heard the LOP first day. I have heard he has gone on record, and then you can't repeat same. This is not the way. I am not going to accept it. Go to your seats. Go to your seats. Please go to your seats. Go to your seats. Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The House is adjourned to meet at 12 o'clock. लोकसभा में आज माहौल थोड़ा शांत रहा। आज पहला दिन था जब प्रश्नकाल पूरा हो सका। मतलब जब से ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसके बाद आज प्रश्नकाल पूरा पहले आज ही हो सका है। इससे पहले प्रश्नकाल हंगामे के चलते नहीं हो पा रहा था। प्रश्नकाल में जल शक्ति, नागरिक विमानन, सड़क परिवहन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयों से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे गए। प्रश्नकाल में एक सवाल का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतमाला और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में अहम जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे गति शक्ति योजना आने के पहले भारतमाला योजना आई थी और उसमें करीब 20,000 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है और उसी में ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे हो, दिल्ली से कटरा के हाईवे हो, ऐसे करीब 24 से 26 हाईवे बन रहे हैं। जहां तक ये भारतमाला योजना थी, ये फेज 1 और फेज 2 में 65,000 किलोमीटर की थी और इस योजना को गति से काम चल रहा है और आने वाले साल में फिर से एक बार इसकी फेज 2 के लिए भी हम जल्दी ही काम शुरुआत करने वाले हैं, जिससे देश की तस्वीर निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामार्ग की बदल जाएगी। जहां तक गति शक्ति की बात है, उसके लिए हमें स्वीकृति मिली है और वो स्वीकृति ये मिली है कि गति शक्ति के योजना के बाद जो हमारी नेशनल हाईवे 1,47,000 किलोमीटर था, अब उसको 2 लाख किलोमीटर करने का उसमें प्रस्ताव है और गति शक्ति में निश्चित रूप से 2 लाख किलोमीटर हाईवे करने के बारे में मान्यता मिली है और उसके साथ साथ भारतमाला में 2 फेज में 65,000 किलोमीटर की मान्यता मिली है
और इसके आधार पर कुछ निकष तैयार करके इसके आधार पर हम लोग नए नेशनल हाईवे को मान्यता देंगे और जहां उसके जो निकष बनेंगे उस समय पिछड़ा हुआ क्षेत्र टूरिज्म के दृष्टि से महत्वपूर्ण और गति शक्ति में लॉजिस्टिक के दृष्टि से पोर्ट को, एयरपोर्ट को और विशेष रूप से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसलिए उसको जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ दोनों योजना में हमने एक कंपनी बनाई है जिसमें हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। करीब 35 लॉजिस्टिक पार्क का ऊपर हमने अभी काम शुरू किया है और आने वाले समय में 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क भी इस रोड के बाजू में बनेंगे, जिसके कारण देश के इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि विशेष रूप से जो हमारे विकसित राज्य है उसमें तो काम हो ही रहा है, पर जो नॉर्थ ईस्ट जैसा क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हमारे कश्मीर जैसा क्षेत्र है, वहाँ भी भारतमाला और गति शक्ति में काम शुरू है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर टनल बन रही है और बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। और निश्चित रूप से ये दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ सदन को दिलाना चाहता हूं कि ये हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और इतना ही नहीं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। नितिन गडकरी के बाद नंबर आता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अब्बास नकवी से मदरसों की हालत पर सवाल किया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में कितने रजिस्टर्ड मदरसे हैं, इन मदरसों में कितने टीचर हैं और सरकार इन मदरसों को कैसे एम्पावर कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? ओवैसी जी, उन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर, यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल में देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम के साथ? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका।